Hello students, in this lecture we will discuss about sexual reproduction in flowering plant. इस lecture में हम flowering plants में sexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे. So angiosperms are commonly called as flowering plants because they produce a specialized organ that is called as flower for sexual reproduction. So angiosperm को हम flowering plants बोलते हैं क्योंकि ये इनमें flowers प्रोड्यूस होते हैं और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट साइट का काम करते हैं. सो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स के बाद देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, दीज आर द फर्दर स्टेजेस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है, फ्रूट के बाद सीड बनते हैं. सो दीज आर द फर्दर स्टेजेस. नाउ लेट्स सी हियर the parts of flower, or we can say the flower structure. So what is the structure? You can see here, as flower is the site for sexual reproduction, so it can be defined as highly evolved modified shoot. इसे हम क्या बोलेंगे? एक modified shoot है, so which is specially designed for sexual reproduction, जो कि sexual reproduction के लिए ही बना है. और यहाँ पर हम इनके different parts के बारे में study करेंगे. जैसे you can see here receptacle, then petal, sepal, stamen and carpel. So here receptacle is what? Receptacle you can say the older name of thalamus. Thalamus का ही पुराना नाम है जिसे हम receptacle बोलते हैं. So receptacle is the axis in which the floral organ is attached. So ये axis है जहाँ पे ये सारे floral organ, petal, sepal, stamen, carpel सब कहाँ से attached है? Receptacle से. Now next is the petals. So what are petals here? Together, if we'll say, these are the colored part, brightly colored part of the flower with good fragrance, and together all the petals called as corolla. Now what is sepals here? Sepals we can say it is the green part which gives protection to flower in the bud condition, and it gives support for the petals also, and together all the sepals together called as calyx. Now stamen is what? Collectively stamen forms the androecium, or we can say androecium consists of stamen which has two parts, that is anther and filament. This is the anther and this is the filament, and your filament is joined by the anther with the help of the point which is called as connective. Now next is carpel. Carpel is what? The female reproductive part that bear the structure called as ovule. So this is what about the structure of flower. So thalamus of flower is the shoot with condensed internodes, and at the nodes here floral whorls, sepals, petals, stamen and carpels are produced. Here stamens and carpels are the male and female reproductive whorl. स्टेमन एंड कार्पल क्या है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल है. तो यहाँ पर एंथर ऑफ स्टेमन एंड ओव्यूल ऑफ कार्पल दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर या हम उसे पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, एंड मेगास्पोर. यस, सो स्टेमन के जो एंथर हैं या कार्पल के जो ओव्यूल्स हैं, सो एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलन ग्रेन्स, एंड ओव्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेगास्पोर. Yes, which develop into male and female gametophyte respectively. Then after pollination and fertilization, here formation of fruits and seeds takes place, and from seed new plants is produced. So यहाँ पर जब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद पॉलिनेशन होगा, देन आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बनेंगे, देन सीड्स बनेंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ सीड्स न्यू प्लांट्स विल प्रोड्यूस. सो दस वी कैन से द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. यहाँ पे क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स बनेंगे, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट takes place, and pollination, then fertilization and formation of fruits and seeds. So it is therefore very important to study the structure of firstly anther and then ovule.
So here, sexual reproduction, it involves fusion of two compatible gametes or sex cells. Two sex cells, male and female gametes का fusion होगा and then formation of zygote. That is what the sexual reproduction. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be seen easily in higher plants at the time of flowering. Plants में juvenile और we can say the same, it is called as vegetative phase. इनके इसका एंड को ही हम बोलेंगे द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज एंड ये हायर प्लांट्स में फ्लावरिंग के समय दिखाई देता है. The flower is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. Flower plant का वो special structure है जहाँ पर कि sexual reproduction होता है. The function of flower is to produce haploid gametes and to ensure that fertilization will takes place. तो फ्लावर का क्या फंक्शन है? हैप्लॉइड गैमीट को प्रोड्यूस करना और इसे इंश्योर करना कि फर्टिलाइजेशन होगा. टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम. सो टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, वेर एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गायनेशियम इज द फीमेल पार्ट. जहाँ पे एंड्रोशियम मेल पार्ट है एंड गायनेशियम फीमेल पार्ट है. Sexual reproduction involves 2 major events, meiosis and fusion of gamete to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offspring. So sexual reproduction में 2 major events हैं, meiosis and fusion of gamete. meiosis होगा, gametes का fusion होगा जिससे zygote formation होगा जो कि diploid है and production of genetically dissimilar offspring. फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे. वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ ओवर द टाइम. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशंस दिखाई देते हैं सर्वाइवल के लिए. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, that is called as fertilization and formation of zygote and embryogenesis. तो sexual reproduction में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और इस प्रोसेस में जाइगोट फॉर्मेशन होगा एंड जाइगोट से फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा. द सीक्वेंशियल इवेंट दैट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हैं उन्हें 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेज, देन फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. So these are the 3 sequential events in the sexual reproduction where pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization में क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस, जहाँ पर कि गैमीट का फॉर्मेशन होगा एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट एंड आफ्टर दैट गैमीट ट्रांसफ़र. तो गैमीट ट्रांसफ़र होगा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जहाँ पर कि मेल गैमीट ट्रांसफ़र होंगे फीमेल गैमीट्स पे स्टिग्मा के ऊपर और वहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन होगा. Now you can see the structure of flower. So typical flower has 2 parts, androecium and gynoecium, where androecium is the male part and gynoecium is the female part of the flower. So this is the gynoecium part and this is the androecium part. Gynoecium consists of ovary, style and stigma, and inside the ovary ovules are present, whereas androecium consists of anther and filament. And here inside the anther, here microsporangia are there and inside that pollen grains are present. So the male reproductive wall of flower, that is called as androecium. फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है उसे एंड्रोशियम बोलेंगे और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन. एंड्रोशियम का जो सिंगल इंडिविजुअल मेंबर है उसे ही बोलते हैं स्टेमन एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन विच कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. दिस इज व्हाट द स्टेमन, एंड हियर filament connects
with the anther by this point that is called as connective. Yes, now this is inside that. If you'll cut the anther, TS of anther, so inside that here microsporangium, and inside that here pollen sacs are present, where pollen grains are present inside the pollen sac. So as we had discussed here, androecium, it is the male reproductive part of flower. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमन. स्टेमन के वॉल से मिलकर बना हुआ है एंड देयर लेंथ एंड नंबर आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज़. डिफरेंट अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेमन का नंबर एंड उनकी लेंथ अलग अलग होगी. सो यू कैन सी दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट. Now here parts of stamen, filament and anther. Yes, so here this is anther and filament joined with each other by this connective. Yes, and inside the anther here microsporangium is there, and inside the microsporangium here pollen sac, and then inside that pollen grains are present. Now let's discuss about the filament. Filament is a long and slender stalk. Filament कैसा है? एक long stalk है. This is the filament and its proximal end is attached to the thalamus or the petal of flower. तो इसका जो proximal end है वो thalamus से या flowers के petal से जुड़ा हुआ होता है. Now let's see the anther. Terminal and typically बाइलोब्ड. दिस इज़ द एंथर. यहाँ पे देखो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं. सो एंड्रोशियम क्या है? एज वी नो हियर एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वॉल. एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. यहाँ पे डेफिनेट नंबर प्रेजेंट है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट में. यहाँ पे डिफरेंट स्टेमन नंबर्स में अलग होंगे. यस, सो ये स्टेमन में हमने देखा क्या फिलामेंट है, कनेक्टिव एंड एंथर प्रेजेंट है. यस, सो एंथर क्या था? एंथर फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का, ठीक है, जो कि 2 लोब से मिलकर बना हुआ है. ये देखो फर्टाइल पार्ट है एंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथिकस. 2 लोब से बना हुआ है. यहाँ पे यू कैन सी दिस फर्स्ट लोब एंड ये दिस इज द सेकेंड लोब. सो वी कैन से it is diathecus. Now anther is connected to the filament by this connective, this is the sterile connective. Internally if you see the diathecus anther is टेट्रालोक्यूलर. जो डायथीकस एंथर है अंदर से देखेंगे तो ये कैसा हमें दिखाई देता है? टेट्रालोक्यूलर मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. यहाँ पे देखो आपको 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में. दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक. ये जो 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर्स भी बोल सकते हैं. यस, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होगा. कहाँ पे होगा ये? इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स जो फॉर्म होंगे तो वो इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या इन्हीं पॉलन सैक्स के अंदर होगा. So terminal and typically bilobed, and each lobe has 2 theca, that is diathecus, and often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ये longitudinal groove जो यहाँ पर lengthwise बढ़ रही है यही क्या करते हैं? theca को separate करते हैं. So let's see about the structure again. An immature structure of anther is represented by group of parenchymatous tissue surrounded by single layered epidermis. So immature anther ये group of parenchymatous tissue से मिलके बना हुआ है जो कि single layered epidermis से surrounded है. Yes, now anther is generally diathecus having 2 lobes. diathecus है, 2 lobes present है. यहाँ बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट.
yes, and each monothecous anther consists of 2 lobes. So this is dithecous. So अगर one side का one theca लेंगे तो उसके अंदर 2 pollen sacs present है. So dithecous, here 4 pollen sacs are present, 2 pollen sacs in each thecus. So each monothecous anther contains 2 pollen sacs. Now let's see TS of anther. So the archisporial cell divides into an inner sporogenous cell and outer primary parietal cell. So archisporial cell divide होता है 2 cells में, inner sporogenous and outer primary parietal cell. Sporogenous cell forms sporogenous tissue. Yes, so sporogenous cell, inner one, that produce sporogenous tissue, and each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Sporogenous tissue की हर एक सेल microspore tetrad बनाने के लिए capable है. Parietal cell undergoes division to form anther wall layer. Parietal cell में division होगा और ये anther wall layers बनाएगी. The wall of mature anther consist of 4 layers. So mature anther की जो walls हैं ये 4 layers से मिलकर बनी हुई हैं. So now we will see TS of an anther, which is showing here the following structures, that is anther wall. So anther wall, a mature anther shows wall consisting of following 4 layers, that is epidermis, endodermis, middle layer and tapetum. So epidermis is what? You can see this is epidermis. It is the outermost common wall layer of anther, which consists of flattened cells and it is protective in function. So outer layer है जो कि common wall layer है anther की. This complete common wall layer of anther, that is the epidermis, जो कि फ्लैटन सेल से बनी हुई है और ये इनका फंक्शन क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द एंथर. नाउ नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीशियम. सो हियर इज एंडोथीशियम. इट इज़ इंटरनल टू द एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर है. कॉमन फॉर द 4 pollen sac and consist of single layer of cell. ऑल pollen sac के लिए कॉमन है, यस, एंड सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है. द सेल ऑफ एंडोथीशियम शोज कैरेक्टरिस्टिक फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलस. एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं ये फाइब्रस थिकनिंग कैलस, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नाउ सेल्स ऑफ एंडोथीशियम situated in the shallow groove between 2 microsporangia and remain thin walled and represent the line of dehiscence. So the cell of endothecium, इनका जो endothecium का जो cell है इनमें grooves के जैसे structures हैं. Yes, you can see this is the groove like structure is present here between the 2 microsporangia. So 2 microsporangium के बीच में ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर हैं. रिमेन थिन वॉल्ड हैं और इनमें डेहिसेंस के लिए लाइन दिखाई देती है. दे रिप्रेजेंट द लाइन फॉर डेहिसेंस. फाइब्रस थिकनिंग एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर. सो इनका जो लेयर है वो just thickening layer is there and the outer layer of endothecium that is hygroscopic in nature, means they can easily absorb water. So these cells help in the dehiscence of anther at maturity. So ये जो endothecium cells हैं ये maturity के समय एंथर की वॉल्स हैं उनको डेहिस होने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम एज इट हेल्प्स in the dehiscence of anther at maturity. Now next layer is middle layer, that is present internal to endothecium. ये endothecium के अंदर वाली layer है, that is middle layer.
1 to 3 layer of parenchyma cells are present surrounding each pollen sac of microsporangium. पेरेनकाइमेटस सेल्स की 1 से 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं pollen sac के सराउंडिंग में. So here we can see these are the 4 pollen sacs. Inside the pollen sacs here, pollen grain tetrads are present. So 1 to 3 layer of parenchymatous cells present हैं pollen sac के surrounding में, और we can say pollen sac और we can say microsporangium. So pollen sac को ही हम microsporangium भी कहते हैं. They are called middle layers. So these are what middle layers. So middle layers कहाँ पे present है? एंडोथीशियम के अंदर वाली layer middle layer है. 1 से लेके 3 लेयर ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल से सराउंड होते हैं ये पॉलन सैक्स, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं. तो यही क्या हमारे मिडिल लेयर्स. द सेल्स ऑफ दीज लेयर्स डीजनरेट एट मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के समय ये जो लेयर्स हैं मिडिल लेयर्स ये डीजनरेट हो जाते हैं. दैट इज़ डीजनरेट मीन्स कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन के बनने के बाद द 2 pollen sac of each lobe merge to form 1 chamber. So ये 2 pollen sac merge होके 1 chamber बनाते हैं. जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में ये 2 pollen sac मिलके merge होकर डाइसेंस के पहले just 1 each lobe merge to form 1 chamber. तो 1 chamber form करते हैं. Now tapetum, it is the innermost wall layer surrounding the sporogenous tissue of microsporangium. सो टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती है माइक्रोस्पोरेंजियम के. एंड द सेल्स ऑफ टेपिटम आर लार्जर इन साइज. टेपिटम के सेल्स साइज़ में बड़े होते हैं विच कंटेन डेंस साइटोप्लाज्मा एंड 1 or more डिप्लॉयड न्यूक्लियाई. सो बड़े साइज़ हैं जिनमें साइटोप्लाज्मा डेंस है एंड इनमें 1 से ज़्यादा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. टेपिटम स्पोरोजिनस टिश्यू को और माइक्रोस्पोर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन. ये स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. स्पोरोपोलिनिन क्या है? पॉलन में एक्साइन का एक कंपोनेंट है जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Now microsporangium or pollen sac. We can see here pollen grains are present inside the pollen sac. So let's see here, in an immature anther inner to the tapetum, the microsporangium contains a compact mass of diploid sporogenous टिश्यू. इमेच्योर एंथर में टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है दैट कंटेन्स अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू. वहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू का कॉम्पैक्टली इट इज़ प्रेजेंट. द सेल ऑफ दिस टिश्यू में अंडरगो माइटोसिस. और ये जो टिश्यूज़ हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, इनमें माइटोसिस होगी और डायरेक्टली फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो इधर इनमें माइटोसिस होगी और दे फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. एंड एट मैच्योरिटी द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स. और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जब ये मैच्योर होंगे देन इनमें मियोसिस होगी एंड 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे. द यंग माइक्रोस्पोर आर generally present in the form of tetrahedral tetrad. जो यंग माइक्रोस्पोर है वो जनरली टेट्राहेड्रल टेट्राड के फॉर्म में दिखाई देते हैं लाइक दिस. यस, so formation of microspore by the meiosis of diploid microspore mother cell is called as microsporogenesis. So ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द TS of anther and about the different structures which this anther TS is showing.
So we can see here consist of 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. Where epidermis, endothecium and middle layer, it gives protection to the anther, and tapetum provide nutrition to the pollen grain. And here you can see pollen grain tetrad as it is found in the form of tetrahedral tetrad structure. These microspores, their structure is like tetrahedral tetrad structure. So they are called as pollen grain tetrads. And this is the diagram of TS of anther, dehisced. So where you can see this is the region of dehiscence, and at the maturity, at the time of maturity, here these two pollen sacs, they merge into one. Yes, they merge into one, and then this will dehisce, split, and then what will happen? These pollen grains comes out of the anther, and then pollination will takes place. So this is what about the structure of anther and the TS of anther. So now when this pollen grains comes out of this anther, so each pollen grain, we can say it is unicellular, uninucleate or spherical structure. Yes, which is oval, or we can say haploid structure of anther. So anther is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corner. So tetragonal structure है जो कि 4 microsporangia से मिलके बना हुआ है, और each microsporangia located at the corners. Microsporangia develop into pollen sac. यही microsporangia pollen sacs में develop हो जाते हैं, and they extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with the pollen grains. ये longitudinally extend होते हैं और इनके अंदर pollen grains packed होते हैं. Epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. So typical microsporangium is near circular in outline. You can see near circular in outline and surrounded by 4 layers. The outer 3 layers gives protection and helps in dehiscence of anther to release the pollen. So बाहर की 3 लेयर हैं, epidermis, endothecium and middle layer, ये प्रोटेक्शन देते हैं एंथर को, और एंथर को डेहिस्ट होने में, उनको स्प्लिट होने में हेल्प करते हैं, और पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं. जो 1 लेयर बच गई टैपिटम, द इनर मोस्ट लेयर दैट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. सो टैपिटम क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देता है, उनको नरिश करता है. द सेल्स ऑफ द टैपिटम contain dense cytoplasma and generally have more than 1 nucleus. टैपिटम के जो सेल्स हैं वो डेंस साइटोप्लाज्मा वहाँ बहुत डेंस हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, एंड जनरली वहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ स्पोरोजिनस टिश्यू एट सेंटर. यंग एंथर में हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस डिप्लॉयड सेल्स. ये होमोजिनस डिप्लॉयड सेल्स और वी कैन से स्पोरोजिनस सेल्स से बने हुए होते हैं. Microsporogenesis, formation of microspore or we can say pollen grain. So each microspore mother cell divides meiotically to form tetrad of haploid microspores, that is pollen grain. हर एक microspore mother cell divide होगा, उनमें meiosis होगा और वो 4 haploid microspore का formation करते हैं. इसे the process is called as microsporogenesis. So as the anther develops, each sporogenous cell or microspore or we can say pollen mother cell undergo meiosis, meiotic division to form microspore tetrads. Microspore tetrads form हो जाएंगे. Microspores arrange in a cluster of 4 cells. 4 cells के cluster में arrange होते हैं. The formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis it's called as microsporogenesis. meiosis के थ्रू ये जो microspores का formation होता है किससे? pollen mother cell से, meiosis से, उसे ही हम process को बोलते हैं microsporogenesis. We can see here this pollen mother cell
Meiosis takes place, tetrad of pollen, and here pollen grain form. This is what microsporogenesis. As the anther matures and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. जब एंथर मेच्योर होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड डेवलप हो जाते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में. एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स. हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ एंथर. जब एंथर डेहिस्ट हो जाता है, स्प्लिट होता है मैच्योर होने के बाद, तो इनमें से ये सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं. Let's see the structure of microspores. Typical pollen grain is a non-motile, haploid, unicellular body with single nucleus. Typical जो pollen grain है नॉन मोटाइल है, मूव नहीं हो सकता, हैप्लॉइड है एंड इनका बॉडी कैसा है, यूनिसेल्युलर बॉडी है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इट इज़ सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड एज स्पोरोडर्म, जो कि सराउंडेड है एक 2 लेयर्ड वॉल से जिसे हम बोलते हैं स्पोरोडर्म. एंड द आउटर लेयर एक्साइन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन. सो इनका जो आउटर लेयर है एक्साइन का वो थिक है और कॉम्प्लेक्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. और ये सब्सटेंस से जिससे बना हुआ है इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन. इट मे बी स्मूथ और विद द स्कल्पचर्ड पैटर्न. इसका मे बी स्मूथ होगा या स्कल्पचर्ड पैटर्न है. इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स. ये केमिकल से रेजिस्ट होता है, इनको किसी भी तरह के केमिकल से इन पे किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं होता. At some places, the exine is very thin, showing thin areas known as germ pores. बहुत सारे spaces पे this is the germ pore you can see. कि कुछ ऐसे places पे ये जो exines हैं ये बहुत ही thin होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसी area में germ pores दिखाई देते हैं. एंड दीज आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन. और ये जो स्पेसेस हैं यहीं से जर्मिनेशन के समय पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है लाइक दिस. द इनर वॉल इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. सो इनर वॉल जो इंटाइन है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है. नो पॉलन ग्रेन एज यू सी द स्ट्रक्चर जनरली स्फेरिकल, जनरली दिखने में हमें स्फेरिकल राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि 25 to 50 मिलीमीटर इन डायमीटर. एंड साइटोप्लाज्मा इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनका जो साइटोप्लाज्मा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. पॉलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्ड वॉल, एक्साइन एंड एंटाइन. एक्साइन इज व्हाट, द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. हार्ड है, आउटर लेयर है जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी हुई है. एंड इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली. एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन. सो ये हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे कि ये बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन. एंड इट कैन विथस्टैंड इन कुछ भी हाई टेम्परेचर हो या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या एल्कली हो, किसी भी तरह की चीज़ इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. ये हर एक कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. एंजाइम्स इवन कैन नॉट डिग्रेड, एंजाइम्स भी इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. सो दैट इज़ व्हाट स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन हैज़ अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर्स. एक्साइन्स में अपर्चर्स होते हैं ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर्स, जहाँ पर कि स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. pollen grains are preserved as fossils due to the presence of sporopollenin. स्पोरोपोलेनिन की वजह से pollen grain को fossils के रूप में भी preserve करके रखा जाता है क्योंकि ये highly resistant है किसी भी तरह के material, organic और alkali material के लिए. Exines exhibit
pattern and designs. Now see antine. Antine is the inner wall. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Inner wall है, thin layer है, continuous layer है जो कि cellulose and pectin से मिलके बनी हुई है. Mature pollen grain contains 2 cells. Mature pollen grain में 2 cells हैं, vegetative and generative cell. This is vegetative and generative cell. Vegetative cell is bigger and has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. बड़ी सेल है, उसमें बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व है और इसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ना जनरेटिव सेल कैसा है? स्मॉल है, यू कैन सी स्मॉल and floats in the cytoplasma of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasma and nucleus. Small है, cytoplasma में float होता है vegetative cell के and इनका shape कैसा है? Spindle के shape में. Over 60% angiosperm shed their pollen grains at 2 cell stage. 60% angiosperm में जब उनके pollen grains split होते हैं तो वो हमेशा 2 celled stage के होते हैं. And in others generative cell divide माइटोटिकली टू गिव 2 मेल गैमेट्स. जहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस होता है और वहाँ पे 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं. दस पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज. दैट वन इज वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट्स. Here let's see the development of male gametophyte. So pollen grains mark the beginning of male gametophyte. Pollen grains male gametophyte का beginning है. जब इनमें germination होगा तो male gametophyte बन जाएंगे, male gametes form हो जाएंगे. It undergoes first mitotic division to produce bigger naked vegetative cell and small thin walled generative cell. जो pollen grains का में यहाँ पे mitosis होगी, देन यहाँ पे माइटोसिस हो गया. दिस इज़ द पॉलन ग्रेन. वी हैड स्टडीड एक्साइन एंटाइन स्ट्रक्चर. एंड देन यहाँ पे माइटोसिस होगी और 2 सेल स्टेज बन जाएंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, वेयर वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर नेकेड, यस, एंड जनरेटिव सेल इज़ व्हाट? स्मॉल थिन. द वेजिटेटिव सेल इज़ रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस. वेजिटेटिव सेल में फूड रिच है एंड उनका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप है, जहाँ पे जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्मा में फ्लोट होता है. देन द सेकेंड माइटोटिक डिविजन is concerned with the generative cell only and give rise to 2 non-motile gametes. अभी ना पहला जब डिवीजन हुआ माइटोटिक तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल फॉर्म हो गए. अब दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये जो जनरेटिव सेल हैं ये डिवाइड हो जाएंगे और ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएगा. द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आइदर इन पॉलन ग्रेन और इन पॉलन ट्यूब. और ये जो डिवीजन हो रहा है जनरेटिव सेल का, ये आइदर पॉलन ग्रेन के अंदर हो सकता है, यहाँ पे 2 मेल गैमेट, और पॉलन ट्यूब में हो सकता है तो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट. यस, द पॉलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर at this 2-celled stage in most of the angiosperms. So pollen grains mostly एंथर से जब शेड ऑफ होते हैं, एंथर से बाहर निकलते हैं तो ये 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल में, और बाद में इनमें माइटोटिक डिवीजन सेकेंड माइटोटिक होता है और 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं. So this is about the development of male gametophyte, where initially it is 2-celled stage and in that celled stage only it shed off from the anther. Anther से 2 celled stage में बाहर आते हैं, फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है एंड जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाते हैं 2 मेल गैमेट्स में. This is the development of male gametophyte. And then as the pollen grain will germinate, so this is the pollen tube. When it falls on the stigma, these male gametes move and then it will reach where? In the ovary, and there it will enter inside the ovary and fertilization will take place.
Now the female reproductive whorl of flower, that is called as gynoecium. This is the gynoecium, or we can say pistil or carpel. Individual member of gynoecium is called as carpel, that is megasporophyll. Individual member जो gynoecium का है उसे हम बोलेंगे carpel. A flower with many free carpels is called as apocarpus. अगर किसी फ्लावर में फ्री कार्पल्स हैं, ज़्यादा हैं, उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस. और अ सिंकार्पस फ्लावर इज़ वन दैट हैज़ मेनी कार्पल्स फ्यूज टुगेदर. जब एक से ज़्यादा कार्पल आपस में फ्यूज़ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंकार्पस. एग्जाम्पल इज़ ब्रिंजल. एंड टिपिकल कार्पल हैज़ 3 parts, that is ovary, style and stigma. So this is the structure of typical carpel. The number of ovules in the ovary varies, okay, in different plants, in different seeds. Here ovules ovary के अंदर उनका नंबर हमेशा डिफरेंट होगा. लाइक पैडी, वीट, मैंगो, दे आर यूनिओव्यूलेट. इनमें एक ओव्यूल है. वेरस टोमेटोज एंड लेडी फिंगर्स मल्टी ओव्यूलेट. यहाँ पर ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं. Now let's discuss about the structure of anatropous ovule. As we know, gynoecium is the female reproductive whorl of flower. Yes, having individual member called as carpel. तो gynoecium क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl है जिनमें इंडिविजुअल मेंबर्स को हम कार्पल कहते हैं. ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. हर एक कार्पल में ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा होते हैं जिनमें ओवरी इनक्लोजेज 1 or more ओव्यूल्स. ओवरी में वो एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. Now here we are discussing about anatropous ovule. Yes, so an ovule क्या है? Integumented megasporangium of the seed bearing plant. So seed bearing plant में ये integumented megasporangium है. Yes, and ovule, what is anatropous ovule? So we can say an ovule which has a bend axis. You can see ये ovule है, इसका axis हमें कैसे दिखाई दे रहा है? Bend axis. Yes, and downwardly directed opening. इनका जो ओपनिंग है ये नीचे की तरफ है. दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. यस, सो सच काइंड ऑफ ओव्यूल विच हैज़ बेंड एक्सिस एंड विच डायरेक्टेड देयर ओपनिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड. सो दैट इज़ कॉल्ड एज anatropous ovule. Yes, and this kind of ovule is very commonly seen in angiosperms. Angiosperm में mostly इस तरह के ovules दिखाई देते हैं. Megasporogenesis. Megasporogenesis means formation of megaspore and development of female gametophyte. So ये जो megaspore का formation है या female gametophyte का development है ये कहाँ पर होता है? That takes place inside the ovule. ये ovule के अंदर होता है. Yes. So each ovule develops inside the ovary and is attached to the placenta by a small stalk called funiculus. Yes. So हर एक ओव्यूल डेवलप होता है कहाँ पर? ओवरी के अंदर, और अटैच होता है प्लेसेंटा से, एक स्मॉल स्टॉक से, जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल और यू कैन से फ्यूनिकुलस. द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज हाइलम. फ्यूनिकुलस मेन बॉडी से जो प्लेस पे अटैच होता है ये प्लेस को हम बोलेंगे हाइलम. यस. Now, in angiosperm, the most common type of ovule is anatropous, in which micropyle is directed downward and is present adjacent to the funicle. Yes, so angiosperm में mostly this is the anatropous ovule is common type. Anatropous ovule क्या है? जहाँ पर कि micropyle नीचे की तरफ downward direction में directed है and funicle के parallel present है. Yes, it present parallel to the funicle. The ovule consists of central parenchymatous tissues, the nucellus which is surrounded usually by 2 protective covering called as integuments, that is outer and inner integuments. Now mature ovule consists of 2 main parts, that is stalk and body. Yes, stalk of the ovule is called as funiculus. Yes, ये क्या करता है? ये ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से. ओव्यूल पूरे ओव्यूल की बॉडी को अटैच करता है प्लेसेंटा से, एंड दिस वेस्कुलर स्ट्रैंड ऑल्सो सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. ये फ्यूनिकल
ओव्यूल की बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द ओव्यूल. यस, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, बॉडी में क्या है, ये स्वोलन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है. यस, एंड यहाँ पे स्टॉक या फ्यूनिकल is attached to the basal part of the body at the point that is called as hilum. Yes, so funicle पूरी body से attach है एक basal part पे, जिसे हम कहाँ से attach है, at this point called as hilum. Now the body of the ovule consists of following parts. Which parts here? You can say nucellus, chalaza, antipodals and secondary nucleus and all. So this body consists of many parts. One by one we will discuss. First is what? Nucellus. Nucellus is what? The central part of the ovule that contain embryo sac. Yes, so this is the main central bulk of the ovule and it consists of many diploid parenchymatous cells. ये बहुत सारे diploid parenchymatous cells से बना हुआ है. Now next is chalaza. Chalaza is the basal part of the nucellus from where the integuments develop. ये nucellus का basal part है जहाँ से कि integuments develop होते हैं. Yes, so this end of ovule is called as chalazal end. Now next you can see the integuments. Here there are, what are integuments here? These are the protective covering of nucellus. ये nucellus की protective covering है which develops from the chalazal part, जो कि chalaza से डेवलप होता है, न्यूसेला के चैलेजर पार्ट से डेवलप होता है. यस, नाउ देयर आर, यू कैन सी हियर देयर आर टू इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट्स. सो दैट एज टू इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट, सो ये ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल इज बाइटेगमिक एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इंटेगुमेंट्स. सो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स आर जनरली बाइटेगमिक. एंजियोस्पर्म्स में हमेशा टू इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो इनके ओव्यूल्स को हम बाइटेगमिक बोलेंगे. नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल. दिस इज द माइक्रोपाइल. सो द इंटेगुमेंट्स लीव अ नैरो ओपनिंग. यू कैन सी हियर दिस इज द नैरो ओपनिंग एट द टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस के टर्मिनल एंड पर एक नैरो ओपनिंग होगी, इसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल. एंड दिस एंड ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड. Yes, next is what? Embryo sac. Embryo sac, in a mature ovule, here nucellus shows presence of an oval shaped haploid structure at micropylar end and that is only called as embryo sac. Yes, so nucellus में हमें यहाँ पर oval shape का ये structure दिखाई दे रहा है. This is the oval shape structure which we can see. Oval shape structure, it consists of 7 celled and 8 nuclei. Yes, haploid structure at the micropylar end that is called as embryo sac or also called as female gametophyte, जो कि 7 cell और 8 nuclei का structure है. यहाँ पर देखो there is a 3 celled egg apparatus. यहाँ पे 3 celled नीचे वाले जो हैं ये क्या है? एग apparatus है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है. तो ये क्या हो गया? ये 3 celled एग apparatus है. इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एग, बीच वाला जो सेल है दैट इज द सेंट्रल एग. यस, यू कैन सी हियर एग सेल एंड उनके सराउंडिंग में जो 2 लेटरल सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स. सो एट द चैलेजल एंड इट हैज़ 3 एंटीपोडल सेल्स. चैलेजा एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं. यस, अ लार्ज सेंट्रल सेल, बीच वाला सेंट्रल सेल है which is covered with mother wall of megaspore has 2 haploid polar nuclei. Yes, at the center. So दोनों तरफ से बीच में सेंटर में पोल से एक एक न्यूक्लियाई आते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. एंड मेच्योरिटी के समय वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं. Yes, so these polar nuclei fuse with each other at later stage before fertilization. Fertilization के पहले वो fuse होते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं? secondary nucleus that is diploid. So ये generally embryo sac, angiosperm में जो embryo sac होता है वो कैसा होता है? monosporic, endosporic and 7 celled and 8 nucleated structure. So this is what about the structure of Anatropous ovule. Now let's see megasporogenesis.
It is the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell. So मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं. सो मेगास्पोर मदर सेल बिकम डिस्टिंग्विश्ड in the nucellus more or less in the center but towards micropylar end of the ovule. So my megaspore mother cell nucellus में present है जो कि towards the micropylar end की तरफ, ovule के micropylar end की तरफ located है. Now development of female gametophyte. Megaspore mother cell undergo meiosis to form linear tetrad of haploid cells, that is megaspore. So megaspore mother cell में meiosis होगा और then ये form होंगे haploid cells linear tetrad form में. इसे हम क्या बोलते हैं, megaspore. Now upper 3 megaspore 4 फॉर्म हुए, इनमें से जो ऊपर वाले 3 हैं that abort, वो abort हो जाएंगे, and lowest one towards the center of the nucellus remain फंक्शनल, और जो नीचे वाला है जो न्यूसेलस की तरफ सेंटर में प्रेजेंट है वो फंक्शनल होगा. एंड इट एक्ट एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ये फीमेल गैमेटोफाइट के पहले सेल की तरह एक्ट करेगा. जनरली 1 मेगास्पोर टुवर्ड्स द सेंटर इज़ फंक्शनल मेगास्पोर. सो ये जो एक मेगास्पोर है जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है यही क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है. एंड इट इज़ इन फैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और ये फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल है. इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इनमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. दस क्या होगा, टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म. टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल, जिनमें से 4 अपोजिट दोनों पोल्स पे लोकेट हो जाएंगे. 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट्स टूवर्ड्स द सेंटर. अब दोनों पोल में 4 इकट्ठा हो गए थे और वो चारों में से दोनों पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट होगा, पोल से सेंटर की तरफ आएगा. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई. अब सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गए हैं जो दोनों पोल से आए हैं, तो दे आर द पोलर न्यूक्लियाई. नाउ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. अब 3 न्यूक्लियाई होंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, कंस्टिट्यूट एग एपरेटस, वो एग एपरेटस बनाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉयड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉयड सिनर्जिड्स. इनमें एक हैप्लॉयड एग सेल होगा एंड उसके एग सेल के दोनों तरफ सिनर्जिड्स हैं जो कि एग सेल को सपोर्ट करते हैं. सो 2 सपोर्टिंग हैप्लॉयड सिनर्जिड सेल्स. सिनर्जिड शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शन. सिनर्जिड्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, विच गाइड्स द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग, जो कि पॉलन ट्यूब को एग की तरफ मूव करने के लिए गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं. Now antipodal cells are a group of 3 cells present at the chalazal end. So this is what chalazal end and this is antipodal cells. So ये 3 सेल के ग्रुप हैं जो कि chalazal end की तरफ प्रेजेंट हैं. The 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus. तो यहाँ पे ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में उनके फ्यूज़ होने के बाद ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, और वी कैन से डेफिनेट न्यूक्लियस जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले का स्टेज है जहाँ पर एक मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज़ होगा और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा. Now this 7-celled and 8 nucleated structure is called as an embryo sac. अब ये 7-celled and 8 nucleated structure as secondary nucleus कैसे फॉर्म हुआ है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने से हुआ है. तो वो 2 न्यूक्लियाई नीचे बीच में हो गए सेंटर में, एंड 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 3 यहाँ हो गए, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल. सो टोटल कितने हो गए, 8 न्यूक्लिएटेड एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर जब फॉर्म हो जाता है इसमें बोलते हैं 7-celled.
सो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक. Now let's see this diagram where you will understand the development of female gametophyte in stepwise manner. Yes, so this is what the megaspore mother cell, yes, which undergo meiosis to form linear tetrad of haploid cell. Meiosis होगा और haploid cells का linear tetrad form हो जाएगा. Then what will happen? These upper three will abort, yes, and the lowest one remains the functional, okay, which is towards the center of the nucellus, and it acts as the first cell of female gametophyte. Yes, now it undergoes 3 successive division, 3 mitotic division, mitotic 1, mitosis 2 and mitosis 3. Then thus total 8 nucleated structure will form here. Yes, where 4 nucleus are located at each pole. So one nucleus from each pole migrates towards the center. हर एक पोल पे 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे, और वो 4 में से हर एक पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट करेगा, सेंटर की तरफ मूव करेगा. जब वो सेंटर में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई. ना 3 न्यूक्लियाई कहाँ पे रह गए, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. यस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस. तो एग एपरेटस में क्या है, एक एग सेल है एंड 2 सिनर्जिड्स हैं. सेंटर में कौन सा है, एग सेल है, और साइड में सिनर्जिड्स हैं. सिनर्जिड्स क्या करते हैं, एग सेल को सपोर्ट करते हैं. हैप्लॉइड सिनर्जिड सपोर्ट्स द एग सेल. अब ये सिनर्जिड्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एग की तरफ आने के लिए. नाउ दिस इज़ द एंटीपोडल सेल्स. सो एंटीपोडल सेल्स में भी यहाँ पे 3 सेल्स हैं. कहाँ पे प्रेजेंट है, चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट है. 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, जो बीच में हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इनमें से ये फ्यूज़ होते हैं, ये फ्यूज़ हो जाएंगे. फ्यूज़ होके क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस. यस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वी कैन से डेफिनेट न्यूक्लियस, जो कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म होता है. तो दिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज embryo sac. And this method of embryo sac development from single megaspore mother cell से ये जो embryo sac का डेवलपमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. Yes, so in angiosperm the development of female gametophyte is endosporic. तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक. एंडोस्पोरिक मीन्स विद इन द मेगास्पोर, जो मेगास्पोर के अंदर होता है. तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है कैसे है, कलरलेस है, एंडोस्पोरिक है. एंडोस्पोरिक अगेन आई एम सेइंग दैट डेवलप्स विद इन द मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और यू कैन से ओव्यूल के अंदर जिनका डेवलपमेंट होता है. सो ये क्या हो गए, एंडोस्पोरिक. Yes, and is concealed in the ovule, that is enclosed by the ovary. So female gametophyte ये सराउंड बाई किसके हैं, न्यूसेलस के, ओव्यूल के न्यूसेलस से सराउंडेड होते हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametophyte. So in this way embryo sac is formed from the megaspore mother cell. Now this method of embryo sac development from a single megaspore is described as monosporic development, and in angiosperm this development of female gametophyte is endosporous, that is within the megaspore. A female gametophyte is colorless, endosporic, and is concealed in the ovule enclosed by ovary. So here in this way we had seen the gametogenesis process where we had discussed about the development of male and female gametophyte. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस देखा जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है. एंड नाउ आफ्टर द गैमीट डेवलपमेंट नाउ विल डिस्कस हाउ दिस गैमीट ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. मेल गैमीट किस तरह से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा के ऊपर, एंड देन वहाँ पे उनका जर्मिनेशन होगा. सो फॉर दिस प्रोसेस हियर पॉलिनेशन हेल्प्स फॉर दैट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनेशन प्रोसेस.
और उसका टाइप्स देखेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स एंड डिफरेंट एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर pollination. So we'll discuss about pollination in the next lecture.